वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर, आप से बात हो रही थी कि व्हेन यू स्टार्टेड ऑफ यू वर एबल टू गेट फाइनेंसिंग फ्रॉम द बैंक्स एंड हाउ डिड दे ट्रीट यू? आई मीन व्हाट वाज देयर रिएक्शन? ये पहला प्रोजेक्ट होगा मोस्ट प्रोबब्ली फॉर द बैंकिंग इंडस्ट्री। Yes, we did. We were able to get financing from Habib Bank. They were not at all reluctant. अच्छा, what was their experience in They this? also looked at the feasibility. They also thought and agreed that it's a feasible project, अच्छा, and they approved the finance. Initially, we worked on 50-50, 50 equity, 50 debt. and original कितना था? This was a project of what size? 800 million? Originally, though, it was a very small project. Total investment was about 30 crores. अच्छा, 300 मिलियन। जी, उसके बाद वी स्टार्टेड ग्रोइंग। हमने और एनिमल्स मंगाए और हमने डेट लिया उसमें फर्दर। अच्छा, और so 50-50 पे आप चलते रहे? 50-50 पे ग्रो करते रहे। फिर एट सम स्टेज, क्योंकि वी रियलाइज कि इसका जेस्टेशन पीरियड इस प्रोजेक्ट का बहुत लंबा है, सो वी डिसाइडेड टू पे ऑफ द डेट। हमने फिर डेट रीपे कर दिया बिकॉज वी फेल्ट के जेस्टेशन पीरियड उसका too लंबा long. है और ये फिर सस्टेनेबल नहीं है कि हम इसमें डेट लें। ठीक। हमें हबीब बैंक ने जो सैंक्शन किया उसमें कोलैटरल, उन्होंने सारा प्रोजेक्ट ही वाज कोलैटरल इंक्लूडिंग द लैंड। Not the animals. Did they Including consider the the animals animals. Including as the- collateral or Yes, not? they did. अच्छा, तो एनिमल्स को वैल्यू वो कैसे करते थे? एट द इम्पोर्टेड वैल्यू और At the imported value. जी, हाँ, was animals were insured. and they were insured. Yes. तो अब जो एनिमल अगर वहाँ से आपकी फार्म से निकल के बाहर चले जाए तो आपका तो कोलैटरल गायब हो गया। तो हाउ डू दे कीप अ ट्रैक ऑफ? देखें, वो तो बैंक को भी पता है हमारा बैकग्राउंड। ठीक तो ठीक। बैंक हैड दैट। So you had the credibility. Yes, absolutely. And जो when you realize कि this gestation period is too long, तो पहले हबीब बैंक ने ये देखा नहीं हुआ था कि ये you'll have to. You see, since so it's like interest during construction or something like that, वो capitalize नहीं किया उन्होंने। This was the very first project. We were the pioneers. ठीक। उस वक्त नंबर्स पेपर्स में तो थे, हाँ। रियलिटी किसी को भी नहीं पता थी। ठीक है, ठीक है। ओनली जब ये प्रोजेक्ट लग गया, नंबर्स आने शुरू हुए, तो इसके फिगर से ही समझ तो आने। पहले साल जो आपकी कोई प्रोडक्शन नहीं थी, जी। और was there any production in There the was first year? no production. What was your running cost during that period? And how many people had you employed on the farm? We had employed almost 50 people. 50 people. Yes. And these were expatriates or? एक्सपर्ट्स, शुरू से ही हमारे पास 5 एक्सपर्ट्स थे। अच्छा, 5 experts. 5 एक्सपर्ट्स थे। And how much you were paying each one of them on the average? आपको इस तरह मैं अंदाज़ा दूं कि हमारी these 5 people are 50% of our total salaries. 50%. Yes. Out of today, our total staff is about 100. अच्छा. And the 5 expats cost us 50% of the total salary. What is your total salary package? Today, total salaries about 2.4 million per month. 2.4 million. 24 लाख। और उसमें से 1.2 million goes to the expats. Yes. So that's not too much, I mean. Overheads तो हो गए, जिसकी वजह से you need the scale to justify that overhead. ठीक ठीक। एंड बाकी बिजली पानी वो, इज इट वेरी इंटेंसिव इन टर्म्स ऑफ एनर्जी और नॉट? Not so much. But you have to keep it air conditioned. Recently it has been a bit because of the frequent power shutdowns और diesel पे चलता है. Long term we do intend to go into a biogas project and generate our own electricity. अच्छा, वो बायोगैस का कब you are? We are already working on the feasibilities. हमने अभी फिलहाल we have looked at some plants in Germany. Germany इसमें सबसे आगे है। ठीक ठीक। और इस वक्त जिस साइज में अब है, मैं इसमें इस वक्त feasible नहीं है। We will grow to about 5,000 and then it becomes feasible. And then you take care of all your energy requirements. Yes. और by biogas. Absolutely, yes. और इसके जो बाय प्रोडक्ट होगा, कोई फर्टिलाइजर वगैरह, वो भी? वो कंपोस्टिंग लगा के it can be used as fertilizer. So it's a very ideal project for at least for a country like Pakistan, जहाँ energy shortage भी है, so it is more or less self-sustaining. जी बिल्कुल। तो
ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए चाहिए एनिमल्स को, हाउ डू यू, आई मीन यू सेड यू हैव टू ट्रीट देम वेरी वेल, तो उसमें जो कॉस्ट आपकी आई है 30 करोड़ में से आधी कॉस्ट इसकी थी या क्या था? इस वक्त 8 लाख रुपए कॉस्ट है पर एनिमल, अगर आप टॉप क्लास जिसमें किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज ना करें, विद प्रॉपर ऑटोमेशन, विद प्रॉपर कंप्यूटर सिस्टम, विद हाई टेक मिल्किंग पार्लर। अच्छा, इसमें से मिल्किंग पार्लर इज अ मस्ट, यू कांट हैव मैनुअल मिल्किंग। अगर आप मैनुअल इस स्केल में तो आप फीजिबल ही नहीं है। ठीक, 1000 एनिमल मिल्क करना है, उसमें यू हैव टू मिल्क देम एट अ वेरी शॉर्ट टाइम। मिल्किंग पावर के अलावा चॉइस ही नहीं है। ठीक है। अगर आप दूसरे सिस्टम में जाएं भी तो उसमें आपका क्वालिटी ऑफ मिल्क भी कॉम्प्रोमाइज होगा। तो ये क्या हर एनिमल को अपना आप देते हैं एनक्लोजर जिसमें वो बैठता है उठता है, या इट्स रोमिंग अराउंड, और हाउ इज इट? हर एनिमल का अपना एनक्लोजर होता है। अच्छा। काउ कंफर्ट का बहुत ज्यादा ख्याल करना पड़ता है। Really? उसकी बेडिंग का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। उसकी बेडिंग वेट ना हो, ड्राई सैंड हो, अच्छा। सैंड कंटिन्यूसली रिप्लेस करनी पड़ती Do है। they like human interaction, the animals? जो I mean, are they like dogs or they crave for देखिए, companionship? जब हमारे ऑस्ट्रेलिया से आए, हाँ, ऑस्ट्रेलिया में पैस्चर्स है, अच्छा। वहाँ ह्यूमन इंटरेक्शन है ही नहीं, अच्छा। बहुत कम है। तो यहाँ दे वर वेरी अनकंफर्टेबल विद Human ह्यूमंस। अच्छा। आप करीब जाएं तो वो पीछे हटते हैं। हटते हैं। जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे हैव बिकम कंफर्टेबल। जो नई जनरेशन है इनकी, जो बच्चे इधर पैदा हुए हैं, वो तो बिल्कुल ही कंफर्टेबल है। वो तो खेलते भी हैं हमारे स्टाफ के साथ, और अच्छा, वो उनमें जो स्ट्रेस फैक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। अच्छा, बिकॉज ऑफ दिस लेकिन इंटरेक्शन। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो हमारे जो फार्म मैनेजर्स हैं, या जो वो जो यूनिफॉर्म होता है, उनका कलर होता है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो उनके साथ कंफर्टेबल है। अगर कोई नया शख्स चले जाए उनके साथ कंफर्टेबल नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, सो दे आर वेरी सेंसिटिव एनिमल्स। यस। तो ये लेट्स से 3 लाख आप कह रहे हैं पर एनिमल कॉस्ट है ऑफ देयर इंपोर्टिंग, 8 लाख आपकी उसके ऊपर पर इंफ्रास्ट्रक्चर 11 लाख, तो पर एनिमल आपकी एनुअल इनकम कितनी हो जाए, रेवेन्यू कितना हो जाता 8 लाख इज द टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग द एनिमल। है इंक्लूडिंग द एनिमल? जी जी। तो 8 लाख के ऊपर आपको एनुअल रेवेन्यू ये कितना देगा ओवर हाउ मच पीरियड ऑफ टाइम? देखिए, 305 दिन का लैक्टेशन होता है। ठीक, एक जानवर तकरीबन 25 लीटर दूध देता है पर डे। सो और- यू आर डूइंग ऑलमोस्ट 8,000 पर एनिमल। जी दिस इज द एवरेज जो जी। आपके आ रहे हैं। जी। और 40 रुपए 60 रुपए, जी। सो तकरीबन 480,000, तो 5 लाख रुपए की रेवेन्यू आपकी एक एनिमल दे रहा है। कॉस्ट इसकी कितनी होगी? बल्क कॉस्ट, सबसे बड़ी कॉस्ट तो इज द फीड। और फीड की कॉस्ट ऑन इज अबाउट, अगर आप सिर्फ मिल्किंग एनिमल की फीड कॉस्ट देखें तो इट्स वुड बी क्लोज टू 40% 40% ऑफ द रेवेन्यू। अच्छा। लेकिन आपके ड्राई एनिमल्स भी बहुत होते हैं। अगर उनको भी आप इनकॉर्पोरेट कर लें तो योर फीड कॉस्ट वुड बी अराउंड, लास्ट ईयर फॉर अस इट वाज अबाउट 50%, दिस ईयर विद अ हायर फीड कॉस्ट इज अबाउट 55%। 55। चलें, फिर भी अगर मतलब 5 लाख आपकी पर एनिमल रेवेन्यू आ रहा है और उसमें अगर आप 55% भी लगा लें तो आई मीन यू स्टिल मेक अबाउट 2 lakhs पर एनिमल per year. So जी। payback is almost 4-5 years. जी। और इसमें फिर फर्दर कॉस्ट अब में आए तो द सेकंड बिगेस्ट कॉस्ट इज द वेज बिल, विच इज क्लोज टू 10% ऑफ द कॉस्ट। 10%. तो 55 plus 10, 65. जी। So 35% मार्जिन है आपका। फिर उसके बाद ओवरहेड्स हैं बहुत सारे, इंश्योरेंस कॉस्ट, बिजली के कॉस्ट। so are you doing this for passion or are you doing it for money? देखिए, इसमें जो इस वक्त अगर हम जो अपनी पोजीशन देख रहे हैं ना, प्रॉफिट्स आर वेरी मार्जिनल, क्लोज टू मैं कहूँगा 5% रिटर्न है। ठीक। लेकिन हम जो देख रहे हैं इसमें कि वे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसी हर्ड multiplying. रिप्लेस होगा, जैसी हर्ड मल्टीप्लाई करेगा, तो सही मानों में रिटर्न्स आने शुरू होंगे इसमें। So then you will be like an Australian farmer. Milk, you'll be selling the animals, you will be doing biogas, you will be probably doing meat or something. So ये पूरी business plan आपका है इसमें? हमारा
किसी इस बायोगैस में जाने का इरादा है, हमारा किसी स्टेज में फीड मिल में भी जाने का इरादा है, किसी स्टेज पे सीमेंट प्रोडक्शन में भी जाने का इरादा है, बट वो स्टेप बाय स्टेप इस वक्त सबसे So बड़ा are you getting the right kind of people? उनको आप ट्रेन कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं क्या? हमने पहले तो एक कंसल्टेंट अपॉइंट किया है अर्जेंटीना से, अच्छा, एंड ही इज विजिटिंग रेगुलरली। उस प्रोजेक्ट में सारी प्लानिंग भी उसी ने की। ठीक। अब वो रिटेनर पे है, ही इज विजिटिंग वेरी फ्रीक्वेंटली, वी एक्सचेंज इंफॉर्मेशन थ्रू ईमेल्स एंड टेलीफोन कॉल्स। ठीक है। और ही इज बेसिकली हेल्पिंग अस, यू नो, पुटिंग द स्ट्रक्चर इन प्लेस, मैनेजमेंट इन प्लेस। जो एक्सपर्ट मैनेजमेंट है वो हमारी ज़्यादातर आई है इजिप्ट से। अच्छा, इजिप्ट से आने की वजह यह है कि इजिप्ट में कॉर्पोरेट फार्म्स का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, पाकिस्तान में अभी शुरू हो गया। ठीक, और इजिप्ट में चैलेंजेस बड़े सिमिलर हैं जो पाकिस्तान के हैं। अच्छा, जो डेवलप नेशंस हैं, यूएस ठीक और है, इन सब यहाँ में under बीमारियां और वो सब नहीं सही है, है। सही है। इजिप्ट में सिमिलर चैलेंजेस हैं, तो उनको उस चीज़ का पता है। और तो वो ये हमारी लोग जो है, यूनिवर्सिटीज वगैरह आर दे वर्किंग विद यू इन एनी वे? और इन यूनिवर्सिटी से हम फ्रेश ग्रेजुएट्स हायर भी कर रहे हैं। अच्छा, उनको फिर ये उनके अंडर, ये एक्सपर्ट मैनेजमेंट के अंडर काम करते हैं और ये ट्रेनिंग इनकी हो रही है। इस वक्त शुरू में हमें थोड़ी सी तकलीफ भी हो रही थी क्योंकि इतनी शॉर्टेज है लोगों की, अच्छे लोगों की, कि इसमें टर्नओवर बहुत ज़्यादा था। ठीक है। अब स्लोली एंड ग्रेजुअली सो स्टडी स्टेट में यू विल हैव अ हर्ड ऑफ व्हाट, 5,000, 10,000? जो हमारे पास इस वक्त लैंड है उसमें वी विल हैव अ हर्ड ऑफ 5,000 5,000 and you'll have employment level of about 150 150. and you'll be self-sustaining in every way. Yes. And at that time, will this business be better than the textile business? Yes, I think so. You think so? Yes. Very good. So we'll take a short break on this and शहजाद फिर आप बताएं कि आपका जो मॉडल है, ये तो कहते हैं 5,000 पे जाके you really start to make money, तो how will you work with the small farmer? Will it be viable for him? We'll take a short break.